السلام علیکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ سورہ انفال کی 20 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور روگرانی مت کرو۔ روگرانی یعنی نافرمانی نہ کرو، منہ مت پھیرو جبکہ تم سنتے ہو۔ سمجھا؟ اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ کی بات پہ چلو اور نبی کی بات پہ چلو۔ تو نبی نے وہی بات بولا جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا۔ اللہ جو فرمایا ہے کہ نبی کہہ دو لوگوں سے، تو نبی نے وہی بات کہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی باتوں پہ چلا جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، تو ان کی باتوں پہ چلنے کا حکم ہے، تو محبت کرتے ہو تم۔ سمجھا؟ محبت کا تقاضا ہی ہے کہ ان کے حکم پہ چلا جائے، نہ یہ کہ ان کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول کے حکم کے خلاف چلنا دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ نافرمانی کرے تو شیطان کی اطاعت ہو جاتی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کیے تو شیطان کی اطاعت ہو جاتی، تو ٹھکانہ جہنم۔ تو اطاعت کرو، بولا باتوں پہ چلو، عمل کرو اللہ رسول کے حکم پہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر تم محبت کرتے ہو تو یہ تقاضا ہے۔ سمجھا؟ دیکھ رہے نا آپ، محبت میں بڑھ چڑھ کے زیادہ محبت کر دیے تو گمراہ ہو گئے۔ محبت بھی جتنا بولا گیا اتنا ہی کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کرسچن لوگ مانتے ہیں، عیسائی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ سمجھا؟ لیکن وہ زیادہ ہی ماننے لگے، عیسیٰ کو کیا بول دیے؟ یہی خدا ہے۔ محبت میں دشمنی سے نہیں بول رہے، وہ لوگ دشمنی سے نہیں بول رہے عیسیٰ کو کہ تم ہی خدا ہو یا عیسیٰ، اور ان میں ایک دوسرا فرقہ بولتا خدا کے بیٹے عیسیٰ۔ دونوں بات غلط ہے۔ تو یہ کیوں بول رہے وہ لوگ؟ دشمنی نہیں ہے عیسیٰ سے ان لوگ کو، محبت بہت، ان کا احترام۔ تو احترام محبت میں گمراہ ہو گئے، بڑا چڑھا کے پیش کیے نا۔ کہیں تو بول دیے خدا ہی عیسیٰ، غلط، پھر کہیں بولے خدا کا بیٹا ہے، یہ بھی غلط۔ تو وہ محبت میں بول رہے ہیں، تو محبت میں بول کے گمراہ ہو گئے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو محبت اتنی کرو جتنا بولا گیا ہے نا۔ اللہ نے بولے کہ عیسیٰ میرے میسنجر ہے، رسول ہے عیسیٰ، تو تم بھی رسول مانو۔ سمجھا؟ عیسیٰ کو بھی موت آنی ہے، جب آئیں گے دنیا میں تو واپس انتقال ہوئے گا ان کا، زندہ اٹھائے نا تو انتقال ہوگا۔ پہلے تو زندہ اللہ نے اٹھایا، تو جب آئیں گے دنیا میں تو ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو عیسیٰ بھی مریں گے، انسان ہے نا۔ تو محبت میں گمراہ ہو گئے عیسائی لوگ۔ سمجھا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی محبت میں ہی گمراہ ہو رہی ہے۔ سمجھا؟ ولی لوگ کا مقام جہاں جتنا ہے اتنا رکھنے کی بجائے اس سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرنا، بولنا، محبت میں ہی بول رہے نا، گمراہ ہو گئے۔ اللہ کی بات ریجیکٹ ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت کہ اللہ کی بات ہی رد ہو جائے تو گمراہی ہے نا۔ ان کی محبت میں، رسول کی محبت میں اور ولیوں کی محبت میں اللہ کی بات کو اڑا دے رہے، تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ اللہ کی بات کو جھوٹا بولیں گے تو سیدھا جہنم۔ اللہ بول رہے ہیں نا، تو ولی اللہ مر گئے، اللہ بول رہے ہیں انتقال ہو گیا، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، بول رہے ہیں۔ اب آپ محبت میں نہیں، ارے وہ گستاخی کر رہے ہیں ولیوں کی شان میں، مر گئے بول رہے ہیں، یہ نہیں سنتے، وہ سفارش نہیں کرتے، ایسا بولیں گے تو بولے ارے گستاخی کر رہے ہیں ولیوں کی، یہ نہیں مانتے ولی کو۔ ولیوں کو مانتے ہیں، ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ان کی باتوں پہ چلا جائے۔ ولی یعنی اللہ کے دوست، تو ان کی باتوں پہ چلا جائے، وہ جیسا عمل کریں نیک، متقی، پرہیزگار، نماز روزہ نیک، تو ویسا آپ کریں گے تو محبت ہوئی ہے۔ نہ کہ یہ کہ وہ بولے نہیں اور تم الٹ پلٹ کام کر رہے ان کے محبت میں ہم گمراہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی ایسے گمراہ ہو گئے۔
समझा, नबी की मोहब्बत में, यानी कि अल्लाह ताला नबी की बात मानेगा, नबी की बात रद्द नहीं करेगा। ये मोहब्बत में गुमराह हो गए। अल्लाह तो बोल रहा है कि नबी की बात मैं रद्द करता हूँ, कुरान में पिछले बयान में है ना, सूरह तौबा आयत नंबर 80, सूरह तौबा में आयत नंबर 96, तुम 70 मरतबा भी दुआ इनके लिए करो, मैं नहीं माफ करूंगा। सूरह तौबा आयत 80, सूरह तौबा में 96 में, अगर तुम इनसे खुश भी हो जाओ तो अल्लाह इन लोग से खुश नहीं होने। तो क्या बोले कि नबी की बात अल्लाह रद्द करता है, समझा। आप बोलो अरे गुस्ताख रसूल, नबी की बात है। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान में आप खोल के देखो, अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह नबी की बात मानने का पाबंद नहीं है, नबी अल्लाह की बात मानने के पाबंद है, समझा। अल्लाह ताला अपने मामलात में किसी को राय मशवरा नहीं लेता, समझा। तो सब सोचने की बात है, मोहब्बत में ही गुमराह हो गए, समझा। हजरत अली को हम भी मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, जन्नती मानते हैं। तो मोहब्बत में कैसा गुमराह हुए देखो, एक गिरोह अली की मोहब्बत में। मोहब्बत उतनी करो जितना ऑर्डर है, जितना उनका मकाम है उतना रखो तो ठीक है। अब मोहब्बत में आप बड़े बड़े लाखों करोड़ों गुमराह हो गए। मोहब्बत कि आप ही सब कुछ है, आप ही बेड़ा पार, आपसे मोहब्बत की तो जन्नत है, आपसे मोहब्बत की तो जन्नत है। और अल्लाह रसूल से मोहब्बत की तो जन्नत नहीं जब तक अमल नहीं कर, समझा। अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा क्या है कि अल्लाह के हुक्म ऑर्डर पे चलना, ये मोहब्बत है। न कि मोहब्बत में करता हूँ अल्लाह से रसूल से और काम में नहीं करता हूँ, लोग के हुक्म पे नहीं चलता। तो ऐसे ही सब वलियों की मोहब्बत में गुमराह, नबियों की मोहब्बत में गुमराह, ईसा की मोहब्बत में गुमराह, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बड़ा चढ़ा के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते तो दुनिया नहीं बनाता। तो मोहब्बत में ही बोल रहे हैं, उनकी शान में बढ़ा के, जब मकाम है वहां की बजाय और ऊपर उठा दे। वैसे ही उठाए ना उन लोग ने, दूसरे फिरके वाले मोहब्बत में ही गुमराह हो रहे हैं, दुश्मनी से नहीं। हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जितना अल्लाह ने बताया है नबियों का मकाम उतना ही। ऐसा ही नहीं कि अल्लाह को मानना पड़ेगा नबी की बात, गुमराही। अल्लाह बोलता मैं नबी तुम्हारे हाथ में नहीं है अख्तियार देना, हिदायत देना तुम्हारे अख्तियार में नहीं है। क्यों? नबी तो चाह रहे थे कि हिदायत मिले, समझा। अल्लाह बोला सूरह कसस आयत नंबर 56 में, हिदायत देना तुम्हारे अख्तियार में। तो अल्लाह तो रद्द कर रहा है नबियों की बात, दुआ भी रद्द किया सूरह तौबा में। आप लोग के जहन में उल्टा सीधा भर दिए सब आलिम मुफ्ती कज़्ज़ाब दज्जाल लोग ने कि ये सब मोहब्बत करे तो जन्नत है, मोहब्बत करे तो जन्नत है, लेकिन इतनी हद से ज्यादा बढ़ा दिए तो मकाम से उठा के, समझा। तो ये मोहब्बत में ही गुमराह हो रहे हैं। अब वली नहीं सुनते, अल्लाह बोल रहा है, आप बोलते सुनते हैं। आप बोलते मैं मोहब्बत में बोल रहा, अरे वली की शान में, शान में नहीं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी आप कर दे रहे वलियों की शान बढ़ाने के चक्कर में, नबियों की भी मकाम को बढ़ाने के चक्कर में मोहब्बत का बोले मोहब्बत कर रहे हैं। अरे मोहब्बत कर रहे तो अल्लाह से नफरत हो गई ना आपकी। अल्लाह की बात को आप झूठा बोल रहे हैं। अल्लाह जो बोला है जो बात, उसको झुटलाना सीधा जहन्नम, और उसमें हमेशा रहेंगे, ये भी सोच लेना आप। सूरह बकरा में है ना आयत नंबर 39 में, समझा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जो लोग हमारी बातों को झुटलाएंगे, हमारी अल्लाह की बातों को झुटलाएंगे, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह की बात को झुटला दे रहे आप मोहब्बत में, नबी की, वली की मोहब्बत में, साहबाओं की मोहब्बत। देख रहे ना आप कितनी मोहब्बत कर रहे हैं हजरत अली से, हम और आप उतनी नहीं करते जितनी कर रहे हैं लोग। अली अली उठते बैठते अली से ही मदद मांग रहे हैं। बोलो कोई रसूल अल्लाह से मदद मांग रहा है, कोई अली से मांग रहा है, पैगंबर से मदद, साहबा से मदद, वलियों से मदद। अल्लाह बोला मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूं। तो फिर उनको कहां से आप पुकार रहे हैं? जायज ही नहीं। कोई पैगंबर को पुकारने का ऑर्डर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 बरस कुरान नाजिल हुआ, कहीं लिखा है कि
तकलीफ में नबी को पुकारो, समझे आप, मत पुकारो बल्कि लिखा है, अल्लाह को पुकारो लिखा है, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो मदद के लिए, ये लिखा है, समझे आप। कितने आलिम धोखेबाज है ना, अरे अल्लाह को क्यों पुकारते हो फिर किसी को मदद के लिए? अरे भाई, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार को मदद के लिए पुकारते कुछ तकलीफ में है तो जिंदा है, आके देते हैं पैसा और मदद करते हैं, समझे आप, समझे आप। जिंदा है तो एक दूसरे की मदद करो, बोला अल्लाह ने, एक दूसरे के काम आओ, मरने के बाद मदद करो, समझे आप। वली पैगंबर सब मर गए, साहबा। मांगो भी 10 लाख दे दो, अल्लाह के नबी या अली आके दे दो 10 लाख, मांगो, मिलता क्या, समझा। हाँ, हयात होते तो आते, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला बोलते, आप उनके पास जाके वो दे देते निकाल के, रहता तो नबी के पास जाते, आप बोलते दे दो कोई चीज, कोई सामान, दे देते अल्लाह के नबी। अब मांगो, अभी मांगो, देते क्या, इतने काल हो गए हमारे में, समझे आप। इसीलिए मोहब्बत में गुमराह कई कौमें हो गई, समझे आप। पैगंबर की, वलियों की, यहूदी लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल है ना, वो भी उनकी मोहब्बत में गुमराह हो गए, समझे आप। तो मोहब्बत उतनी करो जितना हुक्म है, ज्यादा मोहब्बत करेंगे जो अल्लाह नहीं बोला है वहां तक पहुंचा देंगे मकाम में आप उनको, वलियों को, पैगंबरों को, तो अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी। तो अल्लाह की बात झूठी हो गई तो आप अल्लाह जो बोल रहा है उस पे कायम रहना, समझे आप। अल्लाह ने जो बात नहीं बोला, आप कहाँ कहाँ से सुनते आ रहे, दूसरी किताब, मिलावटी किताब। हाँ, कुरान से दलील दिए तो सच्ची बात है, लेकिन कुरान में सब तो है ही नहीं, सब लोगों की फैलाई हुई बातें घूम रही, समझा। मोहब्बत में अंधे मत बन जाओ, मोहब्बत में अल्लाह की बात को मत उड़ा दो। अल्लाह क्या क्या बोला अल्लाह ने पैगंबर और वलियों के बारे में, देखे उफ तक नहीं कर सकेंगे पैगंबर कोई भी अल्लाह के आगे, समझा। कुरान पढ़ेंगे सब बात मालूम पड़ेगी कि सब तर्जुमे से, मायने से, अरबी में नहीं, अपनी जबान में पढ़ेंगे तो सब आँख खुलेगी आपकी, हर मसले में आपको आपकी इस्लाह हो जाएगी, समझे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।